Hello students, today we do the difference between lyophilic and lyophobic colloids. Before starting the difference between lyophilic and lyophobic colloid, first I define again what are lyophilic and lyophobic colloids. Lyophilic colloids are those colloids which have strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, whereas lyophobic colloids are those colloids which have very weak interaction between dispersed phase and dispersion medium. Okay, now I'll start the difference between lyophilic and lyophobic colloids. First, age of preparation, because they have strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, so they are easily formed by direct mixing. मतलब बाय डायरेक्ट मिक्सिंग से हम इसको बना सकते हैं. एंड द जो लायोफोबिक कलाइड है, बिकॉज देयर आर वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, सो दे आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल मेथड्स. Second point is particle nature. The particles of the colloids are true molecules and they are of big size. Second, and the particles are aggregate of many molecules. यहाँ पे जो particles है वो अलग अलग है, यहाँ पे particles क्या है, aggregate है. Aggregate means group of molecules. Visibility. The particles are not easily visible even under ultramicroscope. Why they are not visible? Because they have strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, and the particles are easily detected with the ultramicroscope. Because their particles are not easily mixed, so they are easily detected under ultramicroscope. Stability. The lyophilic colloids are stable. Why they are stable? Because there is strong interaction between lyophilic and dispersed phase and dispersion medium. Lyophobic, these are unstable and require trace of stabilizer. मतलब जो lyophobic है वो unstable होते हैं और उनको stable होने के लिए कुछ stabilizer चाहिए. Nature, action of electrolyte. They are not easily precipitate by small amount of electrolyte. Very large quantity of electrolytes are required to cause coagulation. मतलब ये थोड़ी सी amount डाल के coagulate नहीं होते. Coagulate का मतलब है they does not divide into dispersed phase and dispersion medium. बट इनको अगर हमने कोगुलेट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालनी पड़ेगी. तो दे आर इजली प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट. बट जो लायोफोबिक कोलाइड्स है, बिकॉज इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सी इनको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ताकि हम इनको कोगुलेट कर सकें. रिवर्सिबल और इवर्सिबल नेचर. दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब वंस दे प्रेसिपिटेट दे कैन रीफॉर्म कोलाइडल बाय सिंपल मिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम. मतलब अगर ये रिवर्सिबल नेचर है, अगर हम इनको एक बार प्रेसिपिटेट बना लिए तो अगर हम दोबारा इनको आपस में फिर मिक्स करें तो ये भी जल्दी मिक्स हो जाएंगे. बट दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. वंस दे आर प्रेसिपिटेटेड दे फॉर्म फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन, दे कैन नॉट बी मिक्सल बाय सिंपल एडिशन. मतलब अगर हम एक बार इनको इलेक्ट्रोलाइट डालने पर इनको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग कर दिया तो उसके बाद दोबारा सिंपल मिक्सिंग से हम इनको दोबारा से मिक्स नहीं कर सकते. चार्जेस ऑफ द पार्टिकल. द पार्टिकल डू नॉट कैरी एनी चार्ज. द पार्टिकल मे माइग्रेट इन एनी डायरेक्शन एंड इवन नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जो पार्टिकल्स है इस पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और जो पार्टिकल अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये इनके उसके ऊपर कोई असर नहीं होता. द पार्टिकल मूव इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. यहाँ पे पार्टिकल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, आइदर टुवर्ड कैथोड और टुवर्ड द एनोड. हाइड्रेशन. द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर heavily hydrated due to the attraction of solvent, because there is strong interaction between the dispersed phase and dispersion medium. So the particles of the dispersed phase है वो heavily hydrate हो जाते हैं solvent से. The particles of the colloids are not appreciably hydrated due to the hardness of the solvent, because जो डिस्पर्स फेस है डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इसलिए जो कोलाइड के पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ इजीली सॉल्वेटेड नहीं होते, मीन्स इजीली हाइड्रेटेड नहीं होते. विस्कोसिटी. द विस्कोसिटी ऑफ द सोल इज मच हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. इसमें जो सोल्स है उसमें इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, बिकॉज दे आर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. द विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि इसमें जल्दी डिस्पर्स फेस मिक्स नहीं होता, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी है वो डिस्पर्शन मीडियम पे डिपेंड करती है. सरफेस टेंशन. द सरफेस टेंशन इज यूजली लोअर दैन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. इसकी में जो सरफेस टेंशन है वो उसके डिस्पर्शन मीडियम से कम होती है, बिकॉज ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर जाते हैं. द सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ द सरफेस डिस्पर्शन मीडियम. इसमें भी जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्शन मीडियम पे इसलिए डिपेंड करती है बिकॉज जो देयर इज़ वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. टिंडल इफेक्ट. डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट.
because the particles are with easily mixed with air. Therefore, Tyndall-Fick and Thicol dispersed phase are not easily mixed with the dispersion medium. So in this way we can do the difference between lyophilic and lyophobic colloids.